Am I audible to all? Yes, sir. Okay, let's welcome in lecture number 27. Uh, Today we'll see ergonomics in detail and its objective, its multidisciplinary approach, and what is its background. In last class, we have seen basic of human factor engineering, what is human engineering, and these are all things we have seen discussed along with examples. Okay, so let us see what is ergonomics. We have seen this basically what is ergonomics, how this word ergonomic came into picture because actually this ergonomics word is made up of two Greek words. First one is ergon, which is called work, and nomos, which is called law. So clearly ये बता रहा है कि काम करने के नियम, that is law of doing the work, okay, the assigned work. So that is ergonomics. And some country is using, like US is using this, Europe, they are using this word ergonomics, and since European देशों ने हम पर राज किया है, so ergonomics word Indian context में भी ergonomic word ही use होता है. Whereas if we see US countries and other countries, they somewhere they are calling it as human engineering, somewhere they are calling it as human factor engineering. लेकिन चीज वही है, इट्स बेसिकली रिलेशन बिटवीन मैन एंड मशीन, हाउ मशीन works, how machine and human interface work, and how efficiently, effectively, and productivity wise this interface works, or the combination of these two work to give the productivity part. So this is all about basically the ergonomics. Another definition which International Labour Organization used to give is like human engineering is the application of human biological sciences along with the engineering sciences. So whatever engineering calculation we used to do being an engineer, that comes under engineering sciences. And the study of human body parts and its movement, these are all comes under the biological sciences. So it's a combination of these two, and or rather I should say it's an application of this combination of duo. So this duo works along with it to get to fetch out the assigned work or task, and the benefits being measured in terms of human efficiency along with his or her well-being also. Well-being माने उसकी सेहत भी बढ़िया रहे, एफर्टलेस भी हो उसके लिए, अननेसेसरी का फटीक भी जनरेट ना हो, और हमको प्रोडक्टिविटी भी मिले, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तभी प्रोडक्टिविटी देगी जब वो कूल मतलब उसकी बॉडी और मेंटल दोनों रिलैक्स रहेगा, देन एंड ओनली देन human body would respond towards the productivity. So that's why it is written, it is along with the well-being of human. And we have seen some other definitions also in the past. Now let us discuss with the objectives of ergonomics. So objectives of the ergonomics is like there are number of factors, which we can assess, through which we can assess the job value, and it varies from one job to another job, because every job it has its own criteria to work upon. So first thing we should, what we should do, that is we must have a standard procedure to get the relative worth of each job. One must understand the relative worth of every job. Okay. Another thing is we should be able to do the bifurcation of salaries from one job to another job, that is called the scale difference. So पहले तो हमको स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका पता होना चाहिए कि हम उस जॉब की रिलेटिव वर्थ निकाल लें, है ना, हर स्टेज पे हर
हर बंदे को, जिसको हम बोल रहे हैं नाउ, वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, एक बॉटम होता है, उसके बाद वन स्टेप अहेड हम चलते जाएं तो हमको पता पड़ जाता है दिस इज सुपीरियर टू हिम, नाउ दिस इज सुपीरियर टू हिम, नाउ दिस इज सुपीरियर टू हिम. सो इफ दे आर सुपीरियर इवन अ सिंगल स्टेप अहेड, देन हमको उनके जॉब रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमको उनकी जॉब की जो रिलेटिव वर्थ है उनको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि किसका काम स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंट है. Then and only then we can, design a salary structure as per their the importance or the complexity of job roles. उनके हिसाब से हम कर पाएंगे, तभी हम बाइफरकेशन जब जॉब रोल्स में कर पाएंगे, सैलरी में भी बाइफरकेशन कर पाएंगे. ओके. Okay. So next point is there should not be difference in wages for the person who is in the same position. This should not happen, which is called normally the inequalities, है ना, बराबर नहीं है. फिर ये वाली चीज जब आती है तो जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनका मन बहुत खराब होता है. इवन देन they are capable enough but they won't be able to work because their brain and heart is hurted, like, so वो work नहीं कर पाते. तो there should not be inequalities. This disturbs the productivity of human being. Another thing is, like, qualified worker should get corresponding wages for the same respective work. Yes, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब जो कर रहे हैं उनको सिमिलर टाइप ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड होने चाहिए. इफ वन इज नॉट फीलिंग लाइक कि मेरा प्रोफाइल इनसे अलग है, तो डेफिनेटली उनके मन में ये आएगा कि व्हाई आई एम गेटिंग लेस देन हिम. ये डेफिनेटली किसी भी बंदे के दिमाग में आता है. सो दिस शुड नॉट हैपन. नेक्स्ट इज, there should not be a basis or ground or a kind of a table. I should say there should not be a kind of table sort of for the fixation of incentives or bonuses, for the fixation of incentives and bonuses. मतलब किस बेस पे हम उनको, या किस ग्राउंड पे, या कोई टेबल फॉर्मेट है हमारे पास जिसके हिसाब से हम लोगों ने उनके इंसेंटिव्स और बोनसेस को हमने फिक्स किया हुआ है. वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ tables with us. Okay. So another thing is, when we see, like, we have to the main purpose of ergonomics, to take care of some factors, like we need to increase the efficiency of the system, है ना. तो ये सब होने से we assume, or many other parameters we have to look into to increase the as I told you, the efficiency and effectiveness of the system. Now how this effectiveness and efficiency will increase, we have to take care of these many factors. So these many factors which we have discussed, we have to take care of it to increase the efficiency and effectiveness of the system. Now these about 2 points of increasing, the efficiency and effectiveness would definitely increase the convenience of use, which reduces the errors occurred in the working system, as this is going to be, certainly increase the productivity part. Okay, you just go through the slide. Okay. So, and the last but not the least, the working system should have some desirable features. कुछ ऐसे features होने चाहिए जो कि human values को increase करें. यहाँ human values का क्या मतलब है? Human values का मतलब है उनके लिए safety, stress level, fatigue और overall improvement of
क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ अपन दे रहे हैं, जो एम्प्लॉइज को हम देंगे या वर्कर या ऑपरेटर के लिए होंगे, दैट शुड बी गुड एनफ। जब वो गुड एनफ होगा तभी ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब मशीन का ये अच्छा होगा तब मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरह से जब इस इंटरफेस का ये बढ़ेगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, देन एंड ओनली देन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी विल कम इनटू पिक्चर, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। ओके, नाउ जो प्रोडक्ट जो एर्गोनॉमिक्स है, एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑफ मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है इसमें। नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में पहली है इंजीनियरिंग, टेक्निकल कैलकुलेशंस, व्हाट वी डू, द फिजियोलॉजी, उनकी फिजिकल डायमेंशन की डिफरेंस, द एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ ऑल द फैक्टर्स, साइकोलॉजी, उनका ब्रेन लेवल, एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, माने इंडस्ट्री में ह्यूमन और मशीन दोनों के लिए जो साफ सफाई वाले काम हैं, विच रिक्वायर्स, इवन मशीन रिक्वायर्स हाइजीन। हाइजीन कैसे मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जो जैसे मैंने एक जॉब पीस को अच्छे से फिनिश कर लिया, नाउ द चिप्स आर लाइंग ऑन द टेबल एंड आई एम नॉट सपोज टू पुट अनदर जॉब पीस ऑन द टेबल अगेन, बिकॉज दोज chips will definitely disturbs the datum of the job rather, because table is fixed at its own place, लेकिन उन chips के कारण unevenness surface पे है, तो we are not supposed to put our जो job piece है on the same table. First we need to brush it off, और उसके बाद ही we are supposed to keep that job piece on the table. So this way industrial hygiene for the this thing is also required. कूलेंट है तो कूलेंट बिखरना नहीं चाहिए, जहां से कूलेंट आ रहा है जॉब पीस और टूल पे गिर रहा है, वो अगेन वहां से गिरने के बाद एक जगह कलेक्ट हो जाना चाहिए, प्रॉपर जगह, और जहां से उसको हम बाहर थ्रो कर पाए, वो वहीं नहीं बिखरना चाहिए। सिमिलरली चिप्स का भी प्रॉपर क्लीनिंग और कलेक्शन होना चाहिए, दैट्स व्हाट हाइजीन अबाउट द मशीन, और वो हाइजीन ह्यूमन ऑपरेटर के लिए भी वहां मेंटेन होना चाहिए। सो दिस वे that industrial hygiene in both the ways are required. Okay, now moving to next slide. Now let us discuss about productivity. First of all, what is productivity all about? We have let's see these 3 points: ergonomics, productivity, and working environment. Okay, so all these 3 points, working environment is like all industrial hygiene also is a part of working environment. Ergonomics we have seen. Now let us discuss about productivity. What is productivity? तो इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार जो बात कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी को अचीव करने की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी इज द सोल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस होल द सिस्टम ऑफ इंटरफेस, वट एवर वी कॉल। ठीक है, सो द what is productivity? It's a crying need of the modern business world. अभी productivity सबकी requirement है, everybody wants to give the higher efficiency, जो काम 1.5 दिन में हो रहा है वो 1 दिन में हो जाए। किसको नहीं चाहिए जो काम 2 दिन 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, वो 1 दिन में हो जाए। पहले बहुत सारी चीजें होती थी, पहले भी बैलगाड़ी से लोग जाते थे तो महीनों लग जाते थे दूसरे शहर जाते जाते। आज आप 7 8 10 घंटे में, 12 घंटे में ट्रेन के थ्रू पहुंच पाते हैं। देन फ्लाइट से अगर जाते हैं तो 1 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। सो टाइम बचाना और उसी टाइम में ज्यादा काम करना, दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रोडक्टिविटी। So everybody needs productivity, and definitely it is the crying need of modern world business world. So to reduce the cost of production, and to successfully face the competition within the country and abroad. Abroad means if your product is like of international quality or international basket, then it will be called as the competition in the abroad for that particular product. In business, what we see in manufacturing or in any business, saving the time is also saving the money, because
the number of hours you are going to save, in that number of hours you are going to produce more, so the productivity will be more. Okay, so now productivity consciousness, should exist in each and every one, whether he or she is an employee or an employer. Both should have this kind of consciousness, and it's sometimes exist or sometimes pop up in the in the country, in getting the maximum utilization of available resources. Now what are those resources? Those resources are man, machine, material, capital and power. Okay, so we know, बहुत सिंपल है इसको याद करना, किस पे काम करना है, मशीन पे कौन काम करेगा, मैन काम करेगा, है ना, कि किस चीज को यूज करेगा, मटेरियल को यूज करेगा। तो तीन चीजें तो हो गई, मैन, मशीन, मटेरियल। चौथा क्या है, कैपिटल, और पांचवा है पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमको चाहिए, और कैपिटल हमको शुरू में चाहिए। तो कैपिटल तीन टुकड़ों में बटा होता है। कैपिटल होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल माने बिल्डिंग बना ली, मशीन्स परचेज कर ली। एक और फिर जो अनफिक्स्ड वाले होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है रनिंग एक्सपेंसेस काम में आते हैं, और एक जो होता है मार्केट में फ्लोट करने के काम आते हैं। सो दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सिंस वी don't have a chapter in detail of budgeting and capital or investment, so we are stopping it here, capital in short. Okay, now let us see a numerical dependent on this thing. प्रोडक्टिविटी है क्या? सबसे पहले इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं, प्रोडक्टिविटी है क्या। इज दिस स्लाइड विजिबल टू एवरीवन? यस सर। स्लाइड दिख रही है सभी को? यस सर। ओके, कि खा पी के सो गए? नहीं सर। लाग रहे हो ना? ठीक है, तो यस, we have a numerical with us. This is telling us calculate the productivity per machine hour from the following information. Now क्या क्या information इनने हमको दी है? एक हेडिंग में दिया है मंथ, उस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन के लिए हमने कितने मशीन आवर्स को यूज किया। तो जनवरी में वी हैव डन प्रोडक्शन ऑफ 50,000 यूनिट्स, और वो 50,000 यूनिट्स को मुझे प्रोड्यूस करने में 5,000 मशीन आवर्स लगे। मैंने उस मशीन के ऑपरेशन के 5,000 घंटे हमने लिए, तब हमने 50,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, है ना। माने एक घंटे में हम कह सकते हैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, है ना। ठीक है, अब इसी तरीके से फरवरी में हमने 57,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। अब 57,000 को यूज किया तो उसके अगेंस्ट हमने 6,000 मशीन आवर्स लिए, है ना। 1,000 ज्यादा, 1,000 अगर हमने यहाँ पर ज्यादा मशीन आवर लिए हैं तो 7,000 हमने यूनिट्स को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है। सिमिलरली हम मार्च में देखें तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, कितना बढ़ा, 50 से 57 हुआ फरवरी में, और मार्च में 57 से 63 हो गया। लेकिन वर्क जो आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो भी बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 7,000 हो गए। पहले कितने थे? 6,000 थे। सो 1000 मशीन वर्किंग आवर बढ़ गए, और हमने उस 7,000 वर्किंग मशीन आवर्स में 63,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कि घटी है? डिक्रीज हुई है सर। डिक्रीज हुई है, वेरी नाइस। यस। और कोई किसी को डाउट इसमें, इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? क्या, बढ़िया, इट्स ओके। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या था? जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स थे, है ना, और इनपुट क्या था? मशीन आवर्स जो हमने यूज किए थे। तो जनवरी में व्हाट वी डिड, जनवरी में हमारे जो आउटपुट थे, नंबर ऑफ यूनिट्स थे, वो 50,000 थे, और 5,000 से हमने डिवाइड, क्योंकि मशीन आवर्स उसके अगेंस्ट हमने 5,000 यूज किए। तो एक घंटे में, माने मशीन आवर यूज हम क्या निकाल रहे हैं?
प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये कितने बने, 10 यूनिट बने। सिमिलरली 57,000 बाय 6,000, तो फरवरी में हमको कितने बने, 9.5। सिमिलरली मार्च में हम जब गए तो 63,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया 7,000 वर्किंग आवर्स में, तो ये हो गई 9 यूनिट्स। सो दिस वे यू सी, जनवरी में हमने 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, फरवरी में 9.5 का यूज किया, और मार्च में हमने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। तो यहाँ हम आधा आधा यूनिट, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, हमारी प्रोडक्टिविटी घटी ही है। प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर हमारा घटा ही है, जनवरी से फरवरी आधा यूनिट, और फरवरी से मार्च 9 यूनिट माने आधा यूनिट अगेन कम हुआ है। वेयर एज अगर हम देखें प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 50 से 57 हुआ, 57 से 63 हुआ। तो प्रोडक्टिविटी क्या है आपको समझ में आया। सादे शब्दों में बड़ा आसान है, 1 एकड़ लैंड अगर मेरे पास है और 1 एकड़ में मान लीजिए मैं 15 बोरे गेहूं उगा रहा हूँ, सिमिलरली मैंने अगले साल 1 एकड़ और लिया, और 15, अगर सिंपल कैलकुलेशन करूं प्रोडक्शन के टर्म्स में कि दूसरे एकड़ से मुझे 15 बोरे और मिलेंगे, तो 30 बोरे होने चाहिए 2 एकड़ के हिसाब से। दीज आर प्रोडक्शन फिगर्स। बट अगर 2 एकड़ लैंड लेने के बाद मैं 40 बोरे गेहूं उगाता हूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैं कहूँगा। अगर एक एकड़ में 15 बोरे निकल रहे हैं और 2 एकड़ में 30 निकल रहे हैं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी विल रिमेन सेम, जबकि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। वेयर अगर यही मैं 2 एकड़ में अगर बढ़ा देता हूँ, 30 बोरे की जगह 40 बोरे करता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो इस तरह से सादे शब्दों में होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा कि प्रोडक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसी और प्रोडक्टिविटी कितनी जरूरी और उनको कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ अब प्रोडक्टिविटी हम सादे शब्दों में समझ गए कि प्रोडक्टिविटी क्या है और हम कैसे वर्क करते हैं नाउ। और दूसरा थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी पे अपन ये समझें, जस्ट अ मिनट। प्रोडक्टिविटी पे हम ये समझें कि इस न्यूमेरिकल से हमने क्लियर पता पड़ गया कि फ्रॉम द अबव न्यूमेरिकल वी हैव सीन क्लियरली दैट प्रोडक्शन इज on for increase during the time period of 3 months, but productivity per machine has declined or continuously decreased. Hence the production can be further increased by increasing the productivity or efficiency of the machine or as a whole system. Increase in production does not really means increase in production, increase in productivity does not really means to increase in the production. Therefore, one should not get confused in both the terms, that is production and productivity. Now हम इतना प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और हम किस एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से था, that is quite easy to understand, that's why I have given that example. But productivity की जब मैं बात करता हूँ तो we are talking about inside the factory, where it is dependent upon various factors, which contributes to overall productivity. So we have only 10 minutes from now to complete this Zoom, but we will manage to continue it in the same. Okay, so first one is, जैसा हमने देखा ना, तीन चीजें कौन सी थी, मैन मशीन मटेरियल। कैपिटल और पावर को छोड़ दे तो हम जो 3 फैक्टर्स हैं विच इज वेरिएबल, है ना, अगर हम कैपिटल को और पावर को फिक्स कर दें तो 3 चीजें हमारे पास है, मैन मशीन मटेरियल। तो मैन कौन, लेबर का भी हमको क्या चेक करना है, लेबर के लेवल पे प्रोडक्टिविटी। फिर आता है मटेरियल, कि मटेरियल तो चाहिए, प्रोडक्शन किससे करेंगे, ठीक है, तो मटेरियल की प्रोडक्टिविटी हमको देखनी होगी। एंड द थर्ड वन इज मशीन की प्रोडक्टिविटी। तो ये 3 प्रोडक्टिविटी हम अलग अलग देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का हिसाब क्या चल रहा है। नाउ लेबर की प्रोडक्टिविटी इफ वी सी, तो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स
we have seen most of the workers being done, most of the work is being done or done through the hands of labor. So measurement of efficiency is really necessary, to find out the productivity, which is, essential for the efficiency of to check out the efficiency of the worker. जैसे वो 1 घंटे में पहले 10 जॉब बनाता था, बस अब अगर 1 घंटे में 12 जॉब बना रहा है, से या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, या उसको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, या मशीन का इंटरफेस इंप्रूव कर दें, या इंडस्ट्रियल हाइजीन इंप्रूव कर दें, इससे अगर उसकी प्रोडक्टिविटी में चेंज आ रहा है तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट दी लेबर प्रोडक्टिविटी। नाउ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी हम 2 तरीके से चेक करते हैं। हमारे पास मटेरियल एफजीएस से आया, सॉरी एफजीएस नहीं, रॉ मटेरियल सेक्शन से, रॉ मटेरियल स्टोर से मटेरियल इशू हुआ हमको, से दे हैव गिवन अस 60 पीसेस, से सपोज 60 पीसेस दे हैव गिवन अस, ठीक है। अब 48 एक उसमें हो गया कि वो मटेरियल मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और कितने यूनिट्स की कॉस्ट बनी, तो यहाँ ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक मटेरियल का पीस जो कि सही बन गया, उसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने ओके झंडी दी और वो एफजीएस में चला गया, उसका कैलकुलेशन। और एक जो इम्प्रूव करने के बाद भी नहीं हुआ और स्क्रैप हुआ, क्योंकि कॉस्ट तो जो बिजनेसमैन है उसकी कॉस्ट तो लगी, तो कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मटेरियल वेस्ट होता है तो वो मटेरियल फ्री में तो आया नहीं था, हमने परचेस किया था, तो उसकी कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो यहाँ पर 2 तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे, जो एफजीएस में बन गए, जो फिनिश्ड गुड्स है, और एक वो जो कि क्या कहते हैं वेस्ट हो गए, है ना। तो जो सही वाले उनको कैसे अपन गिनेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, है ना। तो मटेरियल कॉस्ट क्या रही और टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्या रहे, इससे हमारा ये निकल आएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, अगर हम मटेरियल की वेस्टेज देखें तो वी सी इट एज द रेशियो ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जितना स्क्रैप हो गया, वेस्टेज ऑफ मटेरियल टू द टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। तो दोनों को हम टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे, कितने एफजीएस में बन गए उसका परसेंटेज। 60 पीस इशू हुए थे, है ना, मान लो 60 पीस इशू हुए थे, 50 पीस का मान लो एफजीएस में चला गया, तो 50/60 करेंगे तो जो फिनिश गुड्स हैं उसका परसेंटेज आ जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। फिर वेस्टेज जो है, हम जो बचे हुए पीसेस है 10 बच गए 60 में से, बट टोटल कितने थे 60 से, तो जो स्क्रैप है, जो वेस्टेज है मटेरियल का, उसका परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो होगा वो 100% के बराबर होगा, 100% माना जितना मटेरियल हमको इशू हुआ था। तो इस तरीके से हम 2 जगह की मटेरियल प्रोडक्टिविटी इन 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं और सम करके टोटल मटेरियल प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं। नाउ जब हम मशीन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो थिंक अबाउट लाइक जो कैड लैब है आपकी, है ना, कैड लैब्स क्या है, सिस्टम्स है, मशीन्स है ना। तो अब इनको ये फैसिलिटी है ना, और एवरी फैसिलिटी हैज अ कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी माने कितने हैं, कितने कंप्यूटर हैं, भाई हमारी कैड लैब में 30 कंप्यूटर हैं, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास ओवरऑल कैपेसिटी क्या है, 30 की है। अब कैपेसिटी वर्किंग में कौन सी अवेलेबल है, तो भाई इसमें से 2 कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर लिस्ट बनती है। व्हेनेवर एनी प्रोजेक्ट कम्स इनटू पिक्चर, तो कैपेसिटी कैलकुलेशन किया जाता है। जब कैपेसिटी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है उस ऑपरेशन के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो देखा जाता है, तो ओवरऑल कैपेसिटी मिल जाती है। फिर कितनी ब्रेकडाउन में है उनको हटा दिया जाता है, अगर वो उस टाइम तक रिपेयरेबल हो सकती है तो वो टोटल कैपेसिटी में इंक्लूड होंगी, और अगर नहीं हो सकती तो उनको माइनस करके हैंडल किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन जिनसे होगा वो फिगर तो मेरे को चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मैं एस्टिमेशन जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन का कर पाऊंगा वो मेरे लिए फिर मुश्किल है, क्योंकि मैं जो मशीन काम की है उसी से ही कैलकुलेशन करूंगा, अगर ब्रेकडाउन वाली इंप्रूव नहीं हो पा रही तो। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है ना। तो कैपेसिटी 2 तरीके से देखी जाती है, इट इज दी दी since everything is being done through the machine, so you need to measure the productivity in terms of capacity utilization and efficiency of the machine, दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस इन कैपेसिटी टर्म्स।
So it is the ratio of actual machine hours, कितने machine hours used upon planned machine hours into 100. Actual machine hours is like तुम्हारी lab 2 घंटे की थी and you have used only 1 hour for using those computers or machines, so it is 1 by 2 into 100. So actual number of machine hours, कितना समय मशीन पे आपने कितने घंटे काम किया, बट आपने एक्चुअली प्लान कितना किया था उसका तो कैपेसिटी परसेंटेज आ जाता है। दूसरा होता है लॉस्ट टाइम। तो अगर आपने 2 घंटे प्लान किए थे, 1 ही घंटे किया या मान लीजिए 1.5 घंटा किया, तो आपने मशीन आवर कितना लॉस किया, आधा घंटा। 2 घंटे टोटल था, आधा घंटा, तो अपॉन प्लान्ड मशीन आवर्स कितने थे, 2 घंटे इंटू 100। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मशीन आवर लॉस्ट, जो आप प्लान किया था लेकिन आप नहीं कर पाए, अपॉन प्लान्ड मशीन आवर्स। ठीक है, तो 2 घंटे आपको कैड लैब में बैठना था, आप 1.5 घंटा ही बैठ पाए, आधा घंटा नहीं बैठ पाए, सो दैट इज मशीन आवर लॉस्ट अपॉन प्लान्ड मशीन आवर्स इनटू 100। या उस दौरान कुछ और प्रॉब्लम हुई कि मशीन यूज नहीं हो पाई, सो दिस इज अगेन द मशीन आवर लॉस्ट। Another thing is efficiency of the machines. तो efficiency of the machine भी 2 तरीके से निकाली जाती है, output per machine hour, that is output total the actual machine hours, है ना, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी एक्चुअल और कितनी अपन ने प्लान करी थी। सादे शब्दों में मशीन यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमने कितने घंटे कितने इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन स्टैंडर्ड आवर्स ऑन द प्लान्ड मशीन आवर्स। कितने मशीन आवर्स आपने सोचे थे हम काम करेंगे और कितने का आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट आप निकाल पाए हो, सो दैट इज मशीन यूटिलाइजेशन। नाउ कंबाइनिंग दिस टू, आउटपुट पर मशीन आवर और machine utilization will give us the overall efficiency of the machine. So this way we are calculating the machine productivity. So we have seen labor productivity, machine productivity and material productivity, and collectively we can find out the productivity, what is productivity, overall productivity rather I should say. Now it's about to complete, so in next lecture we'll see the benefits of increased productivity and the background of the same in detail. Okay, if you have any doubts, kindly ask me now, or you can even ask me later also. Is it okay? Thank you, sir.